Hello dear students, welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor. This digital initiative has been started by Directorate of School Education, Jammu. I am Sonakshi Sharma, lecturer in zoology. It has been a long time since we met last, so I hope you people are doing good. And today we are going to continue with the unit Genetics and Evolution. But the chapter that we are going to take up is Molecular Basis of Inheritance. This is chapter number 6 as per your NCERT. We are going to study about Human Genome Project. Short में हम इसे HGP भी कहते हैं. A very significant research project in the history of biology. Now, to understand Human Genome Project, first let's just go back to an old method of word splitting. पुराने videos में मैंने आपको बताया है that in biology, whenever you get stuck somewhere, just try to split the word and try to get a meaning out of it. So here you can see that we have three different words with us: human, genome and project. Human का मतलब हम सबको पता है, right? And project का मतलब भी हम जानते हैं. कोई भी planned work या activity with a particular aim and set to complete in a given timeline, that is named as a project. ये दोनों terms हम बहुत अच्छे से understand करते हैं. अब genome, ये जो word यहाँ पे हमारे पास है, genome, this is quite new. So let's try to understand the meaning of genome. A genome is an organism's complete set of DNA, including all of its genes. Simpler words में कहूँ तो एक organism के एक सेल में जितना भी DNA कंटेंट है, उस DNA कंटेंट को हम कहते हैं उस organism का genome. All right? डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA. So all the DNA content of the cell is going to form the genome of the cell. That means हमारी बॉडी में हर एक सेल के पास जीनोम की एक कॉपी प्रेजेंट है. Okay? The concept of genome is clear to you now? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ह्यूमन बीइंग्स के जीनोम को स्टडी किया गया. सो नाउ द मीनिंग इज गेटिंग क्लियर टू यू. व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? एक ओवरव्यू, एक पिक्चर आपके माइंड में अब तक बन चुकी होगी. सो लेट्स नाउ स्टडी दिस प्रोजेक्ट इन डिटेल. The Human Genome Project was a mega project launched in the year 1990. So this project started in the year 1990 and this project was named as a mega project. Human Genome Project को हम एक mega project कहते हैं. Mega का मतलब बहुत बड़ा, which is very huge, very large. So this project was so much large in its scale that it was named as a mega project. This project was coordinated by National Institute of Health, NIH, and the US Department of Energy. देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए पार्टिसिपेंट्स का होना जरूरी है, राइट? सिमिलरली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए दो एजेंसीज जिन्होंने सबसे पहले कंट्रीब्यूट किया, सबसे पहले कोऑर्डिनेट किया, उनका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दैट इज NIH, एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. Later, the Wellcome Trust UK became a major partner and countries like Japan, Germany, China, France, etc. also contributed in it. बाद में जाके जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद
वेलकम ट्रस्ट यूके, ये एक एजेंसी थी जो कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है. दिस एजेंसी बिकेम अ मेजर पार्टनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट. और उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि जापान, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, इन सब ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी. So what was the aim of this project? This project was aimed to find out the complete sequence of human genome. ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंस को फाइंड आउट करना, ये इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव, मेन एम था. यहाँ पे कंप्लीट सीक्वेंस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट सीक्वेंस? देखिए, जीनोम किसका बनता है? डीएनए का. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को रिकॉल करें तो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? एंड न्यूक्लियोटाइड्स किसकी बनती हैं? 3 कंपोनेंट्स आर देयर, जिसमें से एक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेसेस. ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, they are present in a particular sequence in the DNA. DNA में ये जो बेसेस हैं, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. जब ये बेस पेयरिंग करते हैं, ATGC बेस पेयर्स, तो they are present in a particular sequence. For example, AG, TC, CGC, CGA, so on. बेसिस का डिफरेंट अरेंजमेंट एक डिफरेंट सीक्वेंस जनरेट करता है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम था बेसिस की इसी सीक्वेंस का पता लगाना. ह्यूमन बींग्स के जीनोम में बेसिस किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है. दैट वाज द एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. The Human Genome Project was launched on October 1, 1990 and completed in 2003. Thus, it was a 13-year-long project. This line is very important from the point of view of MCQs because बहुत बार ये पूछा जाता है that what was the exact duration of Human Genome Project. तो आपको ये दिमाग में रखना है, 1990 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है and it was completed in the year 2003. तो इस प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन हो गई 13 years. Why is Human Genome Project called as a mega project? Previous slide में जो हमने first point study किया, that was Human Genome Project is known as a mega project. So in examination, this question is asked so many times that why is Human Genome Project called as a mega project? हम इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? मेगा का मतलब है बहुत बड़ा, which is too large, which is massive. ठीक? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप जो भी पॉइंट्स स्टडी करेंगे, उन सब में you will find out that every aspect of this project was so large, was so big that this project was named as a mega project. For example, यहाँ पे आप first point देखिए, you will understand it. It identified and sequenced 3 into 10 raised to power 9 base pairs of human genome. इस प्रोजेक्ट ने ह्यूमन जीनोम के इतने ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई किया. ना सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई किया, उनको सीक्वेंस भी किया. इट आइडेंटिफाइड एंड इट सीक्वेंस्ड 3 into 10 raised to power 9 base pairs of human genome. So this is quite a large number. इतने ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनको सीक्वेंस किया गया, मतलब ये बेस पेयर्स किस पैटर्न में, किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, उसे भी पता लगाया गया. सेकेंड पॉइंट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज $9 billion. So an investment of $9 billion was done in this project. तो आप सोच सकते हैं that जिस प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी कैपिटल
इतनी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की गई हो, वो प्रोजेक्ट कितना मेगा प्रोजेक्ट होगा. The third point is, if the entire obtained sequences were to be stored in books, some 3,300 books, each with 1,000 pages, and each page having 1,000 typed letters would be required. Now don't get confused with so many numerical figures here. Just break this sentence into two parts. पहले आप सिर्फ यहाँ तक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. So this particular section of this point says that इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी के रिजल्ट में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली, डीएनए की सीक्वेंसेस के बारे में हमें जो भी डेटा मिला, उसको अगर हम एक बुक में लिख के स्टोर करना चाहें तो हमें कितनी बुक्स चाहिए? हमें 3,300 बुक्स की रिक्वायरमेंट है. हमें 3,300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन विच विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन को देखिए. ईच विद 1,000 पेजेस एंड ईच पेज हैविंग 1,000 टाइप्ड लेटर्स. हर एक बुक में कितने पेजेस होने चाहिए? 1,000 पेजेस होने चाहिए और एक पेज पे 1,000 लेटर्स टाइप होने चाहिए. 3,300 बुक्स, हर बुक में 1,000 पेजेस, हर पेज पे 1,000 लेटर्स. इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से. क्लियर? So now coming towards the fourth point, involvement of a large number of scientists from different countries. So this is very clear. इस project को fulfill करने के लिए different countries से large number of scientists की involvement रही थी. And the last point, Human Genome Project was closely associated with the development of a new branch of biology called as bioinformatics. Human Genome Project एक इतना मेगा प्रोजेक्ट था, इतना मैसिव प्रोजेक्ट था कि इसने बायोलॉजी की एक न्यू ब्रांच को डेवलप करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी. That branch of biology is now known as bioinformatics. बायो का मतलब हम जानते हैं लिविंग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेटिक्स? इंफॉर्मेटिक्स इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, राइट? सो दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वी कॉल एज बायो इंफॉर्मेटिक्स, इसमें स्टडी किया जाता है दैट हाउ वी कैन यूज कंप्यूटर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजिकल एनालिसिस. So all these points make it very clear that Human Genome Project was quite a massive, a gigantic project. Therefore, it is known as a mega project. तो एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, you just have to write down these points. इनको अच्छे से समझ लीजिए, then writing them down will not be a big issue for you people. So now let's have a look at the objectives of Human Genome Project. Means the aims of Human Genome Project. जब scientists ने ये project start किया, what was the main aim behind this project? So first one was identify all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA. Human beings के DNA के अंदर जितने भी genes present हैं, which range from 20,000 to 25,000. उन सब जीन्स को आइडेंटिफाई करना, उन जीन्स की लोकेशन का पता लगाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जीन है जिसका नाम है ए जीन, तो साइंटिस्ट्स वांटेड टू आइडेंटिफाई दैट ए जीन किस क्रोमोसोम नंबर पे लोकेटेड है. ह्यूमन बींग्स के पास तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उन 23 पेयर्स में से ये जो पर्टिकुलर जीन है ये किस क्रोमोसोम नंबर पे है. अगर हमें पता चल गया कि ये जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है,
तो उस क्रोमोसोम नंबर 1 पे इस जीन की लोकेशन कहाँ है, लॉन्ग आर्म पे है, शॉर्ट आर्म पे है, उसका जो एग्जैक्ट लोकस है उसको आइडेंटिफाई करना. That was one of the primary objectives of Human Genome Project. Second one was determine the sequences of base pairs present in human DNA. Human beings के DNA में जितने भी base pairs हैं उनकी sequence का पता लगाना. Sequence मतलब वो किस arrangement में present हैं. जो एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ग्वानिन base pairs हैं वो किस पैटर्न में, किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है. स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस. इस प्रोजेक्ट से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो जीन की लोकेशन हो या बेस पेयर्स की सीक्वेंस हो, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर करना इन डेटाबेसेस, इन कंप्यूटर्स. बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आने वाले अनकाउंटेबल ईयर्स तक बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली थी. राइट. फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. जो डेटा हमने स्टोर किया उसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है और एनालिसिस के न्यूअर एंड बेटर मेथड्स को डेवलप करना. This was also one of the objectives of Human Genome Project. Next point is transfer related technologies to other sectors such as industries. So those technologies which can help other sectors such as industries, these such technologies should be transferred to the respective sectors where they might prove beneficial. Last objective, address the ethical, legal and social issues that may arise from this project. अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी ethical issue, legal issue या social issue arise हो रहा है, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं ELSI. So that issue should also be addressed. Right? ऐसा नहीं हो कि प्रोजेक्ट की वजह से कोई एथिकल प्रॉब्लम, कोई लीगल प्रॉब्लम या कोई सोशल प्रॉब्लम अराइज हो जाए. सो ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स, all these aims were kept in mind while constructing the base plan of Human Genome Project. Now this diagram has been taken from your NCERT. It is a representative diagram of Human Genome Project. अब तक हमने जो भी पॉइंट्स स्टडी किए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, वो सब कुछ यहाँ पे एक डायग्राम की फॉर्म में शो किया गया है. सो यू कैन सी हियर दैट फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी अ सेल हैज बीन टेकन. ह्यूमन बॉडी से एक सेल लिया गया है. राइट. उस सेल से क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट किया गया है, क्रोमोसोम को निकाला गया है. क्रोमोसोम्स किसके बनते हैं? डीएनए के. वी नो दिस. राइट. इस डीएनए की जो बेस सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस. यही सब हमने अभी पढ़ा है. तो ऑल दैट इज नाउ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. अब सोचने वाली बात यह है कि डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए कौन सा टेक्निक या कौन सा मेथड यूज किया गया होगा. सो टू मेथड्स वर यूज्ड, नेमली expressed sequence tags and sequence annotation. But in methods को समझने से पहले you have to understand this diagram. This diagram is depicting the function of DNA in the body of a living organism. एक living organism की body में DNA का क्या function होता है? How DNA works? हम कहते हैं that DNA controls everything. But how it controls everything? So basically, DNA बनाता है
RNA, and this process is known as transcription. All right. और RNA फिर बनाता है प्रोटीन, and this process is known as translation. This is known as the central dogma of molecular biology. DNA changes to RNA and RNA changes to protein. ये कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए, राइट? तो डीएनए का क्या फंक्शन है? आरएनए को बनाना, ऑल राइट? लेकिन जो ह्यूमन बींग्स का जीनोम है, जो हमारा जीनोम है, उसका का सारा पोर्शन, द एंटायर जीनोम इज नॉट गोइंग टू फॉर्म आरएनए. हमारे जीनोम का 100% डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए नहीं बनाता. In fact, only 2% of DNA transcribes and it forms RNA. सिर्फ 2% DNA ही RNA बना पाता है. इस 2% DNA को हम कहते हैं कोडिंग DNA. And the remaining 98% DNA जो RNA नहीं बना पाता, उस DNA को हम कहते हैं नॉन कोडिंग DNA. तो हमने ह्यूमन बींग्स के जीनोम को 2 टाइप में डिवाइड कर लिया है, कोडिंग डीएनए एंड नॉन कोडिंग डीएनए. कोडिंग डीएनए कितना है? 2% और नॉन कोडिंग डीएनए कितना है? 98%. कोडिंग डीएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा और नॉन कोडिंग डीएनए आरएनए को नहीं बनाएगा. क्लियर? So now let's look at the methods. First one is expressed sequence tags or ESTs. This method involved identification of all the genes expressed as RNA. EST method में उन सब genes को identify किया गया जो कि RNA बनाते हैं. मतलब सिर्फ कोडिंग डीएनए को ही identify किया गया और सिर्फ कोडिंग डीएनए को ही sequence किया गया. Second method is sequence annotation. This method involved sequencing the entire genome and later assigning functions to the different regions. इस मेथड में पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया गया. दैट इज जीनोम का वो हिस्सा जो आरएनए बनाता है एज वेल एज वो हिस्सा जो आरएनए नहीं बनाता है. दैट इज बोथ कोडिंग as well as non-coding part of genome was sequenced. So these two different methods were used in Human Genome Project. So let us now study about the salient features of Human Genome Project. अब तक हमने पढ़ा ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ and why is it named as a mega project, इसके methodologies, aims and objectives, वो सब हमने स्टडी कर लिया. Now we will look that what were the important outcomes, the important observations that were drawn from Human Genome Project. So the human genome is made up of 3164.7 million nucleotide bases. इस प्रोजेक्ट से हमें जो पहली चीज पता चली, that was human genome 3164.7 million bases से बना होता है. This was the first observation drawn from this project. Second observation, on an average, a gene is made up of 3000 nucleotides. पूरा जीनोम कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस का है वो हमने देख लिया, लेकिन जो एक जीन है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है. इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अ जीन इज मेड अप ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स. देन थर्ड वन इज लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन. ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो सबसे बड़ा जीन है दैट इज डिस्ट्रोफिन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQs में पूछा जा सकता है, not only in your board examinations but also in competitive exams.
So remember this, that the largest gene in human body is dystrophin. This gene is very important in controlling muscular functions of our body. Next point, the function of more than 50% of the genes is unknown. एक बहुत ही important observation जो इस project से हमें मिली, it was कि 50% से ज़्यादा genes का जो actual function है वो हमें अब तक नहीं पता है. We don't know what these genes are doing or how they are helping in making up our body. Less than 2% of the genome codes for proteins. ये पॉइंट हमने अभी बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया. हमारे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा ही प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करता है. प्रोटीन्स कैसे बन रहे थे? आरएनए से, और आरएनए कैसे बन रहा था? डीएनए से, राइट? तो हमारे जीनोम का सिर्फ 2% या 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करता है. Less than 2% of the genome is coding genome. Remaining genome is made up of repetitive sequences which do not code for proteins. अब 2% genome तो कोडिंग है, तो जो बाकी मेजॉरिटी जीनोम है, जो जीनोम का मेजर पोर्शन है, वो कैसा है? नॉन कोडिंग है. It is not going to code for proteins. ये जो नॉन कोडिंग जीनोम होता है, it is made up of some special sequences which we call as repetitive sequences. Repetitive sequences आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियोटाइड की एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस ही बार बार रिपीट हुई होगी. जैसे सपोज करो ATA है, तो बार बार वही सीक्वेंस repeat हुई होगी. ATA, ATA, ATA and so on. So this is repetitive sequence. तो जो हमारा नॉन कोडिंग जीनोम है, जो हमारा नॉन कोडिंग डीएनए है, उसमें बेस पेयर्स इसी तरह से रिपीट हुए होते हैं. Now although these sequences are not going to code for proteins, they are not going to transcribe, but these sequences help in understanding chromosome structure, evolution and dynamics. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में, क्रोमोसोम के एवोल्यूशन पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में, और उसके डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में ये नॉन कोडिंग डीएनए विच इज मेड अप ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हमें बहुत हेल्प करता है. And the last observation which was drawn from this project was that chromosome number 1 has most number of genes and chromosome Y has the least. जो हमारा chromosome number 1 है, उस पे सबसे ज़्यादा genes हैं, उसके पास maximum number of genes present है, और chromosome Y पे मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं. सबसे कम जीन्स है क्रोमोसोम Y पे और सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 पे. और भी बहुत सारी आउटकम्स इस प्रोजेक्ट से हमें मिली, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस व्हिच यू हैव टू मेमोराइज. Now we have to study about the applications of Human Genome Project, HGP in short, and this is a very important part. बिकॉज सिर्फ थ्योरी पढ़ने का और फैक्ट्स को लर्न करने का कोई फन नहीं है. यू शुड नो द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वॉट एवर यू आर स्टडिंग. सो लेट्स सी. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज इट हेल्प्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट जेनेटिक डिजीजेस. जेनेटिक डिजीजेस मतलब वो डिजीजेस, वो डिसऑर्डर्स जो जीन में किसी डिफेक्ट की वजह से अराइज करते हैं. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से हमारे पास हमारी बॉडी के हर एक जीन की पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी डिटेल है. वी नो दैट वेयर अ पर्टिकुलर जीन इज लोकेटेड. वी नो दैट व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन. हमें जीन का स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन सब कुछ पता है. दैट मीन्स हम एक नॉर्मल जीन और एक एबनॉर्मल जीन के बीच में अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So we can easily trace out genetic
diseases that are arising due to defect in these genes. और जब हम किसी जेनेटिक डिजीज को डायग्नोज कर लेते हैं तो हम उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. So this is the first application of Human Genome Project, that it helps to diagnose and treat genetic diseases. The second application is it helps to understand how thousands of genes and proteins work together in interconnected networks. हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, thousands of genes और उनके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स किस तरह क्लोज नेटवर्क्स में काम करते हैं, किस तरह कोऑर्डिनेटेड वे में, एसोसिएटेड मैनर में काम करते हैं, that can be understood in a better way as a result of Human Genome Project, right? The third application is all the genes in a genome can be studied together. देखो पहले क्या होता था, साइंटिस्ट्स के पास सारा का सारा डेटाबेस नहीं था, तो दे यूज टू स्टडी अबाउट 1 जीन और 2 जीन्स जिनके बारे में लिमिटेड नॉलेज थी, बस उनकी स्टडी की जा सकती थी. बट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से सभी के सभी जीन्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, एक साथ मिल गई, एक स्टोर्ड मैनर में उसको प्रिजर्व करके रखा गया है. So all the genes of a genome now can be studied together. एक जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन्हें एक साथ स्टडी किया जा सकता है. So these are the important applications of Human Genome Project. So with this we wind up the study of Human Genome Project. I hope all the concepts are clear to you now. Thank you so much students. Stay safe and work hard.